ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨੋਟਿਸ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਮੰਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ। कि ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, इन्होंने सबको मौका दिया कि भाई अगर कोई आदमी कोई स्टे ऑर्डर है या काम को रुकवाने संबंधित कोई वो है तो वो पेश किया जाए। कोई मौके पे पेश नहीं करवा पाया और एज़ पर जो अप्रूव्ड है उसके अकॉर्डिंग काम हो। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨੋਟਿਸ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਣਕ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਦੱਸੋ। 4 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈ, 18-11 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਮੰਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿਖਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਵਰਨਾ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਚੋਰ ਆ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੋਟਿਸ ਲਾਇਆ। ਡਿਊਟੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਊਟੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਗੱਲ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ 18-11 ਤਰੀਕ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। 4 ਦਿਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, 4 ਦਿਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 10 ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 10 ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੋਟਿਸ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਹਾਂ ਖੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲੈਣ ਗਲਤ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਕਵਰ ਏਰੀਆ ਪੰਪ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਜੀ ਐਸੇ ਲੈਣ ਤੇ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੇਸ ਲੜੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਆ ਕਪਿਲ ਵਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆ ਐਸਡੀਓ ਖੜੇ ਇੱਥੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਔਰ ਹਰਮੀਤ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਏ ਆ ਜੀ ਇਸ ਤੇ। ਛੜੀ ਉਦੋਂ ਤਰੀਕ ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, 3 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਨਾਲੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਰੂਟ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਪ ਹੋਟਲ ਕਵਰ ਏਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਜੀ। 2 ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਦਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ। ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁਲ ਲਵਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਤੋਂ ਦੀ 15-20 ਘਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ। 10 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ 10 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ये जो फसल खड़ी फसल है इसको क्यों नष्ट किया जा रहा है, क्या रीजन है? हमने कटा के साइड में रख दिया,
पक्की हुई है, ये काट नहीं रहे, इसलिए वजह से टावर। आप जय साहब? हाँ, वैसे मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, जय सिविल से हमारे साथ आए हुए हैं जो ये फाउंडेशन का वर्क सिविल देखते हैं। मेरा नाम इंद्राज है सर। और सर ये कोर्ट में मामला है, ये मामला कोर्ट में है, आपको पता होगा कोई आप लेके अभी हमारे एसडीओ साहब साथ हैं, उन्होंने अभी ये सारी इंक्वायरी करी है, वो कोई स्टे नहीं है। कोर्ट में मामला चल रहा है? मुझे सर मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, सिविल वाले आपको बताएंगे। 18 तारीख है। हाँ जी, तारीख है अभी, हाँ तारीख है अभी 18 तारीख है। तो ये आपने पहले कैसे डिसाइड कर लिया कि आपके पक्ष में होगा ये मामला? ऐसा है सर, हमारे साहब बताएंगे एसडीओ साहब। मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है, अभी 18 तारीख है, तो उससे पहले ये कार्रवाई कैसे हो रही है? कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है इस पर, और आके ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, इन्होंने सबको मौका दिया कि भाई अगर कोई आदमी कोई स्टे ऑर्डर है या काम को रुकवाने संबंधित कोई वो है तो वो पेश किया जाए। कोई मौके पे पेश नहीं करवा पाया, और एज़ पर जो अप्रूव्ड है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है। नहीं सर, जो इसमें पहले और ये पिछले काफ़ी टाइम से लंबित है ये काम, और लगभग 80% काम हो चुका है। एक कुछ पोर्शन बचा हुआ है जिसमें काम नहीं हो पा रहा था। 5-6 बार ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी डिप्यूट हुए हैं, तो एज़ पर अप्रूव्ड वो हो रहा है, कोई स्टे नहीं है। सिर्फ केस करने से, केस तो हम कितने भी कर सकते हैं, बट इसमें 5-6 डेटें पड़ चुकी हैं, अभी तक कोई स्टे नहीं मिला है किसी भी तरह का। अगर कोई स्टे है तो हम काम नहीं करेंगे। सर पेंडिंग है मामला, हाई कोर्ट में नहीं, पेंडिंग है। स्टे नहीं मिला, प्लीज एक मिनट। जी जी जी, आपको पता है ये स्टे नहीं मिला। जी कल जी, को अगर जी, ये केस इनके हक में हो जाता है तो ये खर्चा आप स्वयं भरेंगे, जो तो वो गवर्नमेंट का 1.5 करोड़ रुपए ज्यादा मैं वही कह रहा हूँ कि अगर एज पर हम प्रोविजंस ऑफ हम कोई भी काम, वी आर नॉट डूइंग इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, हम कोई भी काम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं कर रही है, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ही कर रहे हैं। अगर सरकार के खिलाफ फैसला आता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई एसडीओ या डीएसओ है वो अपनी उसमें काम कर रहा है, वी आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो जो भी अगर इनके फेवर में फैसला आएगा, मैं जो आपकी इस बात का जवाब देता हूँ, अगर इनके फेवर में फैसला आएगा तो गवर्नमेंट इनका ही साथ देंगी एज़ पर कोर्ट डिसीजंस। बट प्रेजेंटली क्या है कि जहाँ भी ये गए हैं कोर्ट में, लगभग 5-6 पेशियाँ हो चुकी हैं। ठीक है, कोर्ट ने अगर स्टे दे देते तो कोर्ट, नोबडी कैन एक्ट ऑन इट अगर स्टे हो जाता है तो, बट कोर्ट ने कोई इनको स्टे नहीं दिया है। और केस तो कई बार क्या है कि कई साल चल जाते हैं, तो उसकी वजह से तो ऐसा है नहीं कि गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट रोक दे। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट है। ये पूरे एरिया की डिमांड को कैटर, गवर्नमेंट का प्लान है कि 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी दे, तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्टअप करना पड़ेगा। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकते। नक्शे तैयार किए गए, पहले नक्शा तैयार हुआ था, पहले भी आप ही के थ्रू हुआ था। देखिए मैं नो ऐसा नहीं है। सस्पेंड कौन हुआ था? खुद बताएंगे यार, अपने क्या वो जी जय नहीं, आप आपके साइन है, डॉक्यूमेंट्स हैं पहले वाले के जो हैं, बनाया आपने। देखिए सुनिए मेरी बात, ना तो मैं सस्पेंड हुआ था। सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ आपको, जो पेट्रोल पंप दिखाया इसमें, मैं जो आपको बात का जवाब दे रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनिए, ठीक है। ना तो मैं सस्पेंड हुआ था, ठीक है, ना ही कोई ऐसा मैटर है। दूसरी बात का जवाब कि कमेटी बनी थी, इंडिपेंडेंट कमेटी एडीसी की चेयरमैनशिप में, एज पर डिसीजन ऑफ एडीसी की कमेटी और होल टाइम डायरेक्टर्स की अप्रूवल के बाद ये काम हो, ऐसा नहीं है। थैंक यू। एक मिनट सर, एक मिनट। जी पहला पे आपने जो होटल, पेट्रोल पंप पर होटल, वो सर होटल जो है पेट्रोल पंप। जी मैं वही कह रहा हूँ, जो कमेटी ने सारी चीज़ें है ना इवेलुएट करके, ऐसा नहीं है जिन्होंने भी केस पुटअप किया, 3 कमेटियाँ बनी हैं, उसके बाद सारा वो हुआ है। नहीं सर, ये देखो जमा गलत आप, मैं वही कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। एक कमेटी बनी है एडीसी की कमेटी, उसने सबकी रिप्रेजेंटेशंस को देखा है। सारी चीज़ें देखने के बाद उन्होंने एक रूट रिकमेंड किया है। फाइनली होल टाइम डायरेक्टर्स की बॉडी होती है, हाईएस्ट बॉडी ऑफ आवर निगम, उन्होंने उसको अप्रूव किया है और एज पर अप्रूव्ड रूट ही काम हुआ। नक्शे थ्रू देखिए, वो चला सर झूठी कमेटी, झूठी है साहब जो झूठ बोले। अब आप देखिए, अगर एडीसी गलत है तो वो तो आप एडीसी जवाब दे पाएंगे, मैं तो नहीं दे पाऊंगा। नहीं, मैं तो नहीं दे पाऊंगा कि एडीसी। मेरा तो टेक्निकल नहीं हूँ मैं किसी भी पॉइंट से, मैं तो सिर्फ और सिर्फ डीसी साहब के आदेश से मैं आया हूँ। मेरी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए।
रोड का नहीं, नक्शा वगैरह मेरा तो टेक्निकल नहीं है ना। हाँ जी, मैं टेक्निकली आपका नहीं है, नहीं, मैं टेक्निकल। हाँ जी, हाँ जी, ऑन ड्यूटी मजिस्ट्रेट है। यहाँ पे होटल और पेट्रोल पंप दिखाएं आपका, वो तो मैं नहीं देख सकता ना। मेरा तो काम टेक्निकल जो टीम है वो देखेगी, बिजली वाले विभाग वाले वो देखेंगे। मेरा काम, क्या कहना चाहते हो? मैं तो काम करवा रहा हूँ जैसे मेरे को आदेश दिए गए हैं। वो गलत नहीं है। अगर गलत होता सरकार आदेश दे देती, कोर्ट स्टे दे देती। कोर्ट ने स्टे ही नहीं दिया, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। वो तो मेरे को तो आदेश दिए हैं ना। मेरे को तो डी साहब ने आदेश दे रखे हैं, मैं तो उसी के अकॉर्डिंग आया हुआ हूँ। लेकिन ये जब आए ना, ये आते ही धमकी देते हैं भी ये किसी ने किसी भी बिल्कुल 1% भी हमने किसी को धमकी नहीं दी। हम धमकी देने के लिए नहीं आए, हम काम करने के लिए आए हैं। वो तो पब्लिक है, वो पब्लिक का काम है बोलना। देखो, अगर कोर्ट में ये साबित हो जाता है ये गलत हुआ है, टेक्निकल आप इन्वॉल्व आएंगे। टेक्निकल है ना, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो ही देखेगा। मैं टेक्निकल नहीं हूँ सर, मैं मान गया। हाँ जी, हाँ जी, टेक्निकल नहीं हाँ, है। हाँ। जब इतने किसान हैं जिनकी जमीन है या गांव के लोग हैं, हाँ जी, हाँ वो जी। आपको बता रहे हैं, आप मजिस्ट्रेट हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट। मेरे को ऐसा कुछ नहीं था। ये ना, मेरे पास ऐसे कोई नक्शा नहीं है। हमने किसी कोई धमकी नहीं दिया। हमने हाथ जोड़ के सबसे सब 3 ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, डॉक्यूमेंट्स सर आपको हम दिखा रहे हैं। इनको दिखाओ। टेक्निकल मैं टेक्निकल नहीं हूँ। मैं टेक्निकल नहीं हूँ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਪੰਪ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਕਵੇੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਆ, ਨੋਟਿਸ ਦੋ ਲਾਣੇ ਸਰ। सुनिए मेरी बात सुनिए। ना तो एक एडीसी की कमेटी बनी है, जो फाइनल एक कमेटी बनी थी, एक इंडिपेंडेंट कमेटी थी अंडर द चेयरमैन ऑफ एडीसी, ठीक है। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट अपनी जांच की है, उनके बाद एक रिपोर्ट सौंपी है। ये जो कंप्लेंट्स हैं, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स थी, ठीक है, उनके बेस पे ही एक फाइनल डिसीजन हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई भी अब्रप्ट यहाँ पे काम करने आ गया। आप अगर देखेंगे तो पीछे देखना, लगभग ये 11 किलोमीटर की लाइन है, 80% काम हो चुका है। सिर्फ जो आसपास का काम है यही बचा हुआ है, 5-7 जो टावर है जो बचे हुए हैं। वही कह रहा हूँ आपको मैं, एक बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि आप एडीसी अगर ये हैं, एक एडीसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं और अमंग द हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, अगर आप मानेंगे तो गवर्नमेंट के हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स में से आते हैं। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट जांच की है, उसके बाद एक रिपोर्ट सौंपी, उसके बाद एक होल टाइम डायरेक्टर्स की बॉडी होती है, उन्होंने उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस को माना है। आफ्टर दैट ये काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अब्रप्ट ये काम हो रहा है। इट्स बीन अप्रोक्सीमेटली 2018 से लगे हुए हैं। नंबर ऑफ कमेटीज़ बन के एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनी है। फाइनली उसकी रिपोर्ट के बेस पे काम हो रहा है। ये सारी बातें आप कह रहे हैं, ये सब उनको पुट हुई हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पुट हुआ। अगर नहीं हुआ है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये एडीसी से पूछ सकते हैं। अब मैं एडीसी से ऊपर तो मैं तो नहीं हूँ। एक मिनट सर, कोई बात नहीं है, एडीसी साहब से भी अभी जाके जी 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 आप ये मौके पे दिखा सकते हो पेट्रोल पंप पर। जी मैं देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं आपको अभी ना तो ऐसा कोई मेरा प्रीव्यू है कि मैं आपके साथ जाके आपको चीज़ें दिखाऊं। आपकी जो भी अगर क्वेरीज हैं, फर्दर अगर क्वेरीज हैं, हमारे एक्शन साहब बैठते हैं डिवीज़न में, सिरसा बैठते हैं। अब उनसे जो भी रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स अगर आप चाहते हैं तो वो वहाँ देख सकते हैं।